श्री अकाल दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, तुसीं देख रहे हो 10 सिटी न्यूज़। अज असीं पहुंचे हाँ पिंड मोजदीन दे द डैफोडिल स्कूल इत्थे जो है एक इंग्लिश एक्सपो एग्जीबिशन जो कार्यक्रम प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिस दे अंदर छोटे छोटे बच्चे किस तरह जो फराटेदार इंग्लिश बोल के आपकी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, आपदा जो है प्रतिभा निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह के जो इन्होंने स्कूल प्रशासन वालों, स्कूल स्टाफ वालों, स्कूल मैनेजमेंट वालों जो बच्चों को तैयारियां करवाई जांदियां कि किस तरह की जो इन्हों की बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। सो इतने तुहाडे सामने जो बच्चे आपके प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कला का, आपकी जो इन्हों के गुण है किस तरह दिखा रहे हैं कि बच्चे किस तरह छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। कुछ दिन पहला इस स्कूल ने एक साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम करवाया सी, जिस मेरे को भी काफ़ी पेरेंट्स की कॉल आई सी कि यार छोटे छोटे बच्चे जोड़े है कि बड़ी फराटेदार इंग्लिश बोलते और बड़ा एक कला का जो इन्होंने आपकी कला दिखाई। सो उस लैके ही अज असीं इत्थे मोजदीन दा डैफोडिल स्कूल पहुंचे हाँ, जिहदे अंदर तुसीं देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे ने कि इत्थे जो अभिभावक पहुंचे, पेरेंट्स पहुंचे, इन्होंने गलबात करवाएंगे कि स्कूल मैनेजमेंट किस तरह के जो है एक ग्रामीण इलाके पेंडू इलाके के अंदर आके किस तरह के जो है बच्चों की शिक्षा लिए काम कर रहा है, किस तरह के जो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवा रही है, किस तरह के बच्चों को फैसिलिटी दी जा रही है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह राज्यसभा में रिटायर हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह खार के अध्यक्ष लिखा गया भावुक पत्र। सामाजिक घटनाएं। आरबीआई के 90वां स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। धन्यवाद। Welcome back to the India News. I am Avish. Let's start with the headlines. Taiwan hit by strongest earthquake in last 25 years. Pickleball is the fastest growing sport in America. News from entertainment. But Munal Thakur said the maximum money she had spent on clothes is Hey everyone, my name is Arpan. Today I am here to tell about the social media apps. In today's time, social media apps are larger platforms as news sources rather than traditional media platforms. First social media app, Microwave, invented in 1997, later named as 6 Degrees, with the access of internet to the common people, the way of social media app to completely revolutionize. Some of the famous social media apps are first, YouTube, second, Facebook, third, Twitter, fourth, Instagram, fifth, WhatsApp. Now I am introducing these social media apps. Hello, I am a Facebook. I was founded on 4th Feb 2004. I was founded by Mark Zuckerberg. Currently I have 3 billion users. Thank you. I am YouTube. I was founded on Feb 2005. I was founded by Javed Karim and Brian Acton. Currently I have 2.7 billion users. Thanks. अगर हम पेरेंट्स के तौर पर बच्चों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे, then how could they learn? We as a parent has a major responsibility. Yes, it is very true that teachers are also playing a role of parent, but you all as the first parent, if you boost up the morale of your student, of your kid, then we are always here to make them learn. So again, I request all the audience to please motivate their children by doing clapping. Here I am Apurva. My name is Yashmeet Kamboj. This is Joe in front of you. My name is Janet. Here is Nicole. Today we are here for group discussion on the most serious concern, which is brain drain. According to me, firstly we should know the meaning of brain drain. When a number of people are migrating to some other countries that are already developed, such as Australia, Japan, etc., is known as the process of brain drain. There are many reasons behind the brain drain. So firstly, I will talk about the very first reason, that is education system. In India, as we know, education is not much well maintained. A number of students are migrating to some other countries for having good and better education, and brain drain is occurring in India. Thank you. Education system is not very well maintained in India, especially in government sectors. In some government sectors, teachers do not care about their children and they do not teach them good habits. Thanks. According to me, in India, there is a high paying for the normal courses, but in other developed countries, all the courses can be done in a very cheap rate, and much facilities are provided to students. And by governmental survey, last year 80,253 students migrated from India to another developed countries. I agree with Vyomni saying that many of students of India migrate to another country to take education.
As we can see a glimpse of our world, in India the medical education is too much higher, but in another country, Ukraine, there is a cheaper and they provide more facility than India. That's why brain drain occurs. As we only that teachers are very skilled in India, but they are not taking much attention on their students, especially in government sectors. Because in government sectors, they are giving too much formalities to them, like election survey and many more. Due to that, they are not able to give much attention on their students, so that the students of India are migrating to another countries. Thank you. All shapes and size. Oh, I'm not talking about your logics. I'm just talking about different mathematical shapes. So, let us welcome our tiny tots to describe shapes. Have a big round of applause for them, everybody. It is circle, it has no sides, example of lights. Thank you, have a great day. Hello. Hello everyone, my name is Gusi Rasanda. Today I am telling about shape. It is triangle, that's three sides, example of light, sandwich. Thank you, have a nice day. Hello everyone, my name is Gusi Rakor. Today I am telling about rectangle. It is rectangle, it has four sides, example of like doormat. Thank you. Today I am telling about plastic. Plastic is very harmful. Many animals eat plastic mistakenly and they die immediately. Show me your homework now. Sorry ma'am, I forgot to complete my homework. It is not the first time you often don't do your homework properly. Ma'am, please do not let him tell about this to my parents. May I come in, ma'am? Yes. Why did you always come late? Ma'am, my house is far from the school. How far your home from here? It is 5 kilometers from here. Not complete my homework. Okay, sit down. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome, sit down. Bye bye, my lovely students. Bye, ma'am. Hello? Please tell me what happened. Actually, doctor, since morning I have severe stomach pain. Tell me where exactly the pain is. It is near the lower abdomen. Do you have other symptoms? No, doctor. What did you eat last night? I had dinner party with my friends in a restaurant. That's the reason. Don't worry. I am prescribing you some medicines. Take them regularly and avoid eating outside food. Thank you so much, doctor. Take care. I want to share with you that I thought we are only 3 girls who educate in this village. So now it's time to start our mission. We have to open up the basic learning school. Before starting our school, we have to take funds from NGO. Yes, let's go. समय निकाल कर आप सब पेरेंट्स आप यहाँ पहुँचे, आपका मेरी ओर से डैफोडिल स्कूल की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। और मैं तो यही मानता हूँ, जो हमने कई बार शर्तें लगाई हैं, जो बड़े बड़े राजनीति में लोग आते हैं वो स्टेज से डरते हैं, और कई लोगों को हम बोलते हैं भी आप स्टेज पे खड़े हो गए 2 मिनट भाषण दो, वो डर जाते हैं इस चीज से। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने और स्कूल ने मिलके आपस में कोऑर्डिनेशन बना के इतने बड़े प्रोग्राम किए, पहले भी किए, आज भी किया और आगे भी करते रहोगे। तो मैं तो आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपके छोटे छोटे नन्हे बच्चे देखो, छोटे छोटे कितनी एक्टिविटीज, लोगों को बड़े होकर बोलना नहीं आता, और जो बच्चा आज यहाँ खड़ा होकर एक छोटा नन्हा बच्चा बोल गया तो वो समझो कल को कुछ बने, वो कल का फ्यूचर है।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫਲੀ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੈਫੋਡਿਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, तो ये ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ हर साल मतलब इस तरह होना। डैफोडिल स्कूल की तरफ से आज प्रोग्राम करवाया जा रहा है, कार्यक्रम क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये एक बहुत बढ़िया एफर्ट्स है। देखो कि जब बच्चा स्टडी करता है, स्टडी के साथ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। इसके साथ साथ बच्चे को नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चे का ओवरऑल मॉरल को भी बहुत बूस्ट करता है। जैसे ग्रामीण अंचल में स्कूल इतने अच्छे कार्यक्रम करवा रहा है, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है बच्चों को, मैनेजमेंट के लिए क्या करें? देखिए मैनेजमेंट के तो पूरे एफर्ट्स हैं इसको बढ़िया प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, ऐसा बच्चों को पूरा ट्रेंड करने के लिए, तो हम तो सल्यूट करते हैं ऐसे मैनेजमेंट। सर आज स्कूल में पहुँचे फंक्शन में क्या कहेंगे? इन नेचर स्कूल के फंक्शन के बारे में कहेंगे, इंग्लिश एक्सपो एग्जीबिशन है, ये अपने आप में एक यूनिक इन नेचर नथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। प्रशासन को, मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ। आई वेलकम छोटे बच्चों को ये ऑन द स्टेज के ऊपर लेके आ रहे हैं, स्टेज पे लेके आ रहे हैं, बल्कि परफेक्ट इंग्लिश में किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं बच्चे, जिस तरीके से इंग्लिश का जो डेलीगेट है वो डिलीवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा और यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं सारे स्कूल को, मैनेजमेंट को, टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रोग्राम में पहुँचे क्या हाँ जी सर, कुछ महीने पहले हमने जैसे साइंस एग्जीबिशन और हमारे विरसे से जुड़ी हुई कुछ झांकियाँ देखी थी, पर आज द डैफोडिल स्कूल में इंग्लिश एग्जीबिशन लगा है जो बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपना हुनर दिखाया है, और हम बच्चों के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी, तो हम तो मतलब इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, बच्चे ला देख के बहुत अच्छा है। सत श्री अकाल जी। बच्चे खबर दे जी। हाँ जी, बच्चे स्कूल फंक्शन करवा रहे हैं, किस तरह का फंक्शन? बहुत बढ़िया है। अच्छा, पहले भी इस तरह का होता रहा? हाँ वेख्या जी, हाँ जी कई बार वेख्या। ठीक है, किस तरह की पढ़ाई है जो बच्चों को शिक्षा पढ़ाई बहुत अच्छी है जी। Yes, good morning sir. I am excited this English Expo exhibitions. Really good मतलब arrangements and nice. लाइक प्रोग्राम स्कूल पति पूरी रात घर से गायब रहा और सुबह सुबह वापस लौटा, तो सही है। पत्नी ने गुस्से में कहा सुबह के 7 बज रहे हैं, अच्छी है। अब किस लिए आए हो? हाँ जी, मेरा बेटा 4th क्लास में है, अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। शांति में कहा, अरे पगली नाश्ता करने आया हूँ। क्लास में बेटा मेरा 4th क्लास में है, बेटी 9th क्लास में है। So let's call on stage. हाँ जी, स्टडी अच्छी है, बेटी हमेशा पोजीशन में आती है, बेटा भी इस बार पोजीशन में है, पहले से बेटर है। बहुत ही अच्छा स्कूल है और बच्चों को स्टडी भी यहाँ बहुत अच्छी करवाते हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। हर फंक्शन में बच्चों का पार्टिसिपेट करवाते हैं, बच्चों को गुड नॉलेज देते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि ये बच्चों को अच्छी नॉलेज के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए ये सब एग्जीबिशन करवा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इनसे। जैसे ग्रामीण इलाके में स्कूल आके ऐसे कार्यक्रम करवा रहा है, तो कहाँ तक आप मानते हो भी शहरों में जाने की ज़रूरत है बच्चों को? नो सर, बहुत अच्छा है, रिस्पांस दे रहा है स्कूल, बच्चे भी बहुत अच्छे स्टडी कर रहे हैं। जो गांव में मिल रहा है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। देखो ये स्कूल बेस्ट है फुल एरिया में से, और जितों तक प्रोग्राम अलग अलग डिफरेंट टाइप का कोई प्रोग्राम वगैरह करवा रहे हैं जिहदे बच्चों को एक्सपीरियंस मिल रहा हर एक चीज़। जिवें पिछली बार साइंस एग्जीबिशन सी, अब इंग्लिश एग्जीबिशन है, तो सानू भी बच्चों के पता लगता भी की सीख रहे हैं, की सिखा रहे हैं, तो सब तो बेस्ट है। स्कूल बहुत ही अच्छा है और डैफोडिल स्कूल के जरिए मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। किस तरह की जो स्टडी है, किस तरह के प्रोग्राम जो इत्थे करवाए जाते हैं? स्टडी बहुत अच्छी है, जिवें देखा जाए मतलब शहरों के मुताबिक भी बहुत अच्छी स्टडी करवा रहे हैं। अब बच्चों को फैसिलिटी किस तरह की? फैसिलिटीज़
पूरी फैसिलिटीज़ पूरी मिल रही है हाँ जी तो एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चे मोटिवेट होंगे हैं। This is Gurlal Singh, English teacher in Daffodil School, Mosdin. So we highly appreciate to all the students, those who have done their great performances in the instruction of all teachers. So English teachers especially, they put their full efforts and they make the students how they are incredible performances they are giving. So I appreciate all the students as well as teachers and management efforts, how they perform well. And today's function, today's English Expo, English exhibition, it was really very fantastic, amazing events done by all the students as well as teachers. They were very well performing and we were very happy, really we are very happy, and we appreciate upcoming events in our Daffodil School, like different exhibitions will be performed by our school. जैसा हम देख All great parents have a big round of applause for them. I'm assured that you will definitely like it. It is very Yes sir, of course, it will be continue in future. Upcoming programs will be held more effortly and they will perform definitely good in future. Thank you. Good afternoon everyone. Actually I'm telling you about our Daffodil School. It is a grand and big exhibition. As you can see, everyone is giving their performance and students are there giving their best, and they are manipulating their idea. Their ideas are very descriptive and very textual, and they are giving their best, and we are very hard. And as you can see, our school is going to hold the exhibition. As you can see, there is a big and grand platform for all the students and as well as parents too, and they can learn very easy things, and they can also impressive by the kids' vast performances. And thank you so much. You can see English exhibition is held in our Daffodil School. It is a small effort to promote the English environment in our school. You can see the happy faces, how the children are performing. The main motto is to improve the skills of students in English language. In today's world, English is not only a language, sir. It is a medium to exchange the knowledge, culture and thoughts. We know the importance at the global level. English is known as the lingua franca, means the shared language of the global level. So by these kids, all these plays, children will not only learn, they will also understand the importance of English. Because in today's level, if you want to progress in your career, English is compulsory, sir. You can see on the village level, we are trying to give our best in the village level, just because to promote the English on the village level, sir. Thank you, sir. You come here, sir. आज इंग्लिश एग्जीबिशन कराया जा रहा है स्कूल में, किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह के बच्चों की तैयारी? जी सर, जैसा कि आपको पता है कि आज द डैफोडिल स्कूल में इंग्लिश एक्सपो एग्जीबिशन का आयोजन होने जा रहा है। आपको याद होगा कि आप 27 जनवरी को साइंस एग्जीबिशन पे आए थे जनवरी महीने में, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अब इसके बाद एक इंग्लिश एग्जीबिशन करवाएंगे, क्योंकि इस एग्जीबिशन का जो मेन मकसद है, मेन विज़न है, वो हमारा यही है कि आने वाले टाइम के अंदर इंग्लिश के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ती जा रही है। अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी भी बहुत रुचि बढ़ती जा रही है। तो इंग्लिश में बच्चों का एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 10-12 के बाद बच्चे आयल सेंटर में, पीडी सेंटर में जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का और पेरेंट्स के पैसों का मतलब ख़राबी हो रही है। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग से ही बच्चों का एक मोटो बनाया, एक टारगेट दिया, बच्चों को टास्क दिया कि टीचर्स को भी बोला है कि जैसे हमारे बच्चे नर्सरी केजी से निकलते हैं तो उन्हें ग्रामेटिकली नॉलेज बच्चों को प्रॉपर होनी चाहिए, और बच्चों का जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए। तो हमने इस फंक्शन में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऐड किए हैं जो स्किट के माध्यम से, जिसमें बच्चों के एटिकेट्स, मैनर्स भी इंप्रूव होंगे, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होएंगी, बच्चों की स्पीकिंग भी इंप्रूव होएगी। हमने बड़ा एक तरीके से इस चीज़ को जोड़ा है। लास्ट 10-15 दिन से सारे टीचर, सारे बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को एटिकेट से, मैनर से कैसे जोड़ा जाए, बच्चों के एटिकेट्स, मैनर्स कैसे इंप्रूव किए जाए, उसके साथ साथ जो इंग्लिश के प्रति रुझान है उसमें रुचि बच्चों की कैसे बढ़ाई जाए। तो उसी मकसद को लेते हुए आज सारे पेरेंट्स भी आए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। तो बच्चों का जो उनकी फ्लुएंसी है इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो कैसे बढ़ाने, उसी को लेके आज का जो कार्यक्रम हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया था।
पिछले ही साइंस एग्जीबिशन में देखा, बच्चों ने अपनी कलाकृतियाँ दिखाई थी, मेहनत दिखाई थी। काफ़ी दर्शकों में हमारे पास भी कॉल आई कि बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की इंग्लिश जो बड़ी कारगर है। आज इंडिया हमने इंग्लिश एग्जीबिशन भी किया, तो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम? जी बिल्कुल सर, निश्चित रूप से हमारे जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी KG क्लास है, फर्स्ट सेकंड क्लास है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, फोनेटिक साउंड। तो हमारे जो टीचर्स हैं प्री नर्सरी, नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड के, वो फोनेटिक साउंड पे काम करते हैं, क्योंकि फोनेटिक साउंड क्या है, बच्चों की रीडिंग स्किल्स में बड़ी इंप्रूवमेंट लेके आता है। स्टार्टिंग में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ रहती हैं? रीडिंग स्किल के अंदर, क्योंकि जब तक बच्चा रीड नहीं कर पाता तब तक बच्चा लर्न नहीं कर पाता, और लर्न नहीं करेगा तो बच्चा पेपर के ऊपर प्रिंट कैसे करेगा। तो मोस्टली हम बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स का देखते हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते हैं। मेरे पास 3rd 4th में बच्चे आते हैं जो आउट ऑफ स्कूल से आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि 3rd 4th 5th के बच्चों के रीडिंग स्किल बड़े वीक रहते हैं। तो उसका जो मेन वीक पॉइंट है वो यही है कि स्कूल्स के अंदर रीडिंग स्किल के ऊपर काम नहीं किया जाता। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्री नर्सरी, नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड में कि हम फोनेटिक साउंड पे काम करते हैं, हाउ टू ब्लेंड द वर्ड्स, कि 3 to 4 लेटर को कैसे ज्वाइन करके रीड करना है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बच्चों का रिजल्ट भी आ रहा है, पेरेंट्स के भी आउटपुट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने साइंस एग्जीबिशन पे आपको बोला था कि हम ये जो इंग्लिश एग्जीबिशन हम करेंगे, हमारे एरिया में पहली बार ऐसा जो प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ हमारा मदर डे है, तो उसमें मदर्स को कॉल करके बच्चों के साथ सामूहिक रूप पे हम मदर्स एंड बच्चों की जो परफॉर्मेंस कराने का हमारा प्लान है कि स्टेज पे बच्चे आए, मदर्स के साथ आए बच्चों की अंदर, क्योंकि बच्चे डिग्री ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्लास प्रमोट हो जाती है, बच्चों में कॉन्फिडेंट नहीं आता। तो हमारा जो मेन मोटो है कि बच्चे स्टेज पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, परफॉर्म करें इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, उनमें कॉन्फिडेंट आए।